So what is happening here? As we know that the Bholi was called the simpleton. Bholi was called the simpleton. The reason behind of it that when she was very young, she was fallen down from the cot and her head was damaged, severely damaged. And that's why her inner intelligence as well as her talking capacity was decreased. So it seems like that she, until unless she reached at 5 years old, she was even unable to speak clearly. She stammered while speaking. So we just come to the point what is happening here. So when Bholi was 7 years old, when Mangla was married, Mangla was the second daughter of Ramlal. So when Mangla was married, the same year, the primary school for the girls was opened in the village. And as the chief guest, who came? The Tehsildar came out to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and you must set an example to the villagers. You must send your daughters to the school. So it was the wish of Tehsildar. Tehsildar thought that if you are a very respected kind of a person of your village, you should set up an example. What kind of example? By sending your daughters to the school. Because on that particular day, the school was set up. School was inaugurated by the Tehsildar. तो तहसीलदार जब आए थे वो क्या करने आए थे? इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे. प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन हो रहा था उनके अपने गांव में, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि देखो आप तो एक रेवेन्यू ऑफिसर हो, और रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब होता है कि वो गांव में और अपने एरिया में उसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस होता है. तो तुम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो. So उस समय तो रामलाल को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, बट एनी हाउ ही कंसेंटेड. वो उस बात पे एग्री कर तो जाते हैं. द सेम नाइट व्हेन ही केम एंड ही कंसल्टेड टू हिज वाइफ, शी क्राइड. और वो चीखती चिल्लाती है, कहती है पागल हो गए हो क्या? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? So, but Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार. लेकिन रामलाल को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार मतलब हो गए कि बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं, तो उनसे बड़े ऑफिसर थे, तो उनको अपोज करना, उनको डिसोबे करना, ये उसके बस की बात नहीं थी. एट लास्ट वाइफ सेड, इस बाद में सब कुछ सोचने के बाद उसकी वाइफ कहती है कि लेट मी think over it. तो वो जब सोचती है कहते हैं I will tell you what to do. Send Bholi to school as it is there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. अब वो ये समझ जाती है कि देखो ऐसे भी मेरी बेटी जो है वो इतनी सुंदर तो है नहीं, उसके चेहरे पे क्या चीज़ के मार्क्स हैं? ब्लैक स्पॉट्स हैं ड्यू टू स्मॉल चिकन पॉक्स. तो वो बचपन में हो जाने की वजह से ओनली आईज वर लेफ्ट, रेस्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ हर बॉडी वाज डिसफिगर्ड. सो वो कहीं शादी तो होगी नहीं, या चांस है भी तो बहुत कम है, तो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी को उठा करके हम स्कूल वालों पे छोड़ देते हैं कि अगर कल को शादी नहीं होती है तो कहेंगे कि आप लोगों ने ही तो फोर्स किया था और आप इसके बारे में कुछ सोचिए. तो सी थॉट शी वॉज क्लेवर. वो एक तरह देखा जाए तो रामलाल की वाइफ जो थी वो रामलाल से ज़्यादा क्लेवर थी. So next see, so does Bholi enjoy her first day at school? अब स्कूल जाने की बात फिक्स हो गई है कि उसकी वाइफ ने कह दिया कि हाँ अब लेकर के जाओ साथ में. तो क्या भोली पहला दिन जब स्कूल जाती है तो एंजॉय करती है या फिर अच्छा लगता है? सेकेंड क्वेश्चन है, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या वो अपने टीचर को बिल्कुल अलग पाती हैं, जो उनके घर के मेंबर्स थे उनसे थोड़ा डिफरेंट पाती हैं? तो देखेंगे आगे चल के. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम with me, I will take you to the school. Bholi was frightened. Because there was a picture. There was a picture which was stored in her mind when she was young, and she had seen that when her father took the you can say took the thread or took the rope of her cow Lakshmi and staggering towards the market, and later on she knew that she was sold. जब उसे पता चलता है कि उसकी गाय जो थी उसका नाम था लक्ष्मी, उसे उसके फादर ने किस तरह से रस्सियों से पकड़ करके लेके गए थे और फाइनली उसे बेच दिया था,
तो वो भी जाना नहीं चाहती थी, तो उसे लगा कि ये भी मुझे लेकर के जा रहे हैं और ले जाकर के बेच देंगे। दैट्स व्हाई शी डिड नॉट वांट, शी वाज फ्राइटेंड, वो बिल्कुल डर गई कि ये मुझे घसीट रहे हैं, लगता है ले जाकर के मार्केट में बेच के आ जाएंगे। You should recall some old story that we have heard from our ancestor or maybe father, grandfather, grandmother. से they always narrate, कभी भी बच्चा अगर बदमाशी करता था तो कहते चलो इसको बाजार ले जा रहे बेच देंगे। Sometimes your little daughter और लिटिल ब्रदर को, अगर तुम छोटे थे वो भी छोटा, तो कोई बोलता था कि ले जा रहे हैं तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को मार्केट में बेच देंगे। सो इट वॉज बीइंग नैरेटेड एंड यू गॉट फ्यूरिएटेड, और तुम्हें डर हो जाता था, तुम तुरंत रोने लगते थे कि नहीं मेरा भाई छोड़ दो, मेरी बहन छोड़ दो। तो इट सीम्स लाइक दैट शी डिड नॉट लाइक, वो भी उसे पसंद नहीं आया। So she did not know what a school was like. उसे तो स्कूल क्या होता है ये बिल्कुल पता ही नहीं था। That's why she was frightened. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसने फिर जब याद आया कि अरे ये तो पापा लेके जाएंगे और मुझे वापस लेकर के नहीं आएंगे, बेच देंगे। तो she stammered but told no 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 no. She shouted in terror and pulled her hand, और छुड़ाने की कोशिश करने लगी from her grasp of father. What's the matter with you fool? shouted रामलाल। रामलाल ने कहा बेवकूफ तुम्हें हुआ क्या है, क्या क्यों इस तरह से कर रही है? I am only taking you to school, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ, कोई बहुत कहाँ ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें नॉर्मल स्कूल लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife let her wear some decent clothes today, or else what will the teacher and the other school girls think of us when they see her? Look here, this line. This line represents the critics of the society. So critics of the society means the girl child were not allowed even to study in school, or they were not even allowed to wear new clothes in those days. As because you are the youngest one in the family, so your elder will leave some clothes for you and you don't have to ask that I want new. ये ट्रेडिशन सिस्टम चलते जा रहा था क्या कि जब बड़े भाई बहनों के कपड़े जो छोटे होंगे वो पास आउट हो जाएगा, किसको? छोटे भाई बहनों को। तो उसने कहा कि देखो इसे कुछ ढंग के कपड़े पहनाओ, नहीं तो स्कूल में और टीचर्स या स्कूल गर्ल्स क्या सोचेंगी कि हम लोग इसे अच्छे कपड़े भी नहीं दे सकते हैं, इसी वजह से उसे पहनाने के लिए कह रहे हैं। So new clothes had never been made for Boli, क्योंकि नए कपड़े कभी बोली के लिए बने ही नहीं थे, ना खरीदे गए थे। The old dresses of her sisters were passed on to her and no one cared to mend or wash. Look here the mend word. Mend means होता repair. Mend means repair. So the no one cared, किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके कपड़ों को कभी मेंडिंग कर दें, या अगर कट गए फट गए तो उसे सिलाई कर दें, या उसे प्रॉपर वॉशिंग कर दें। So but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। अब वो जो ड्रेस चंपा को फिट नहीं हो रहे थे वही अब इसे दे दिया गया कि अब चलो तुम पहन लो, और इसे ना ठीक से उस पर आयरन किए हुए थे, ना वो ठीक से वॉश थे, तो वो कई जगह से श्रिंक कर गए थे। श्रिंक मीन्स होता सिकुड़ गए थे। And she was even bathed and boiled, rubbed into the dry and matted hair. आज पहली बार उसे नहलाया गया था, उसके जो मैटेड हेयर थे, उलझे हुए बाल थे, उसे सुलझा दिया गया और उसके ऊपर तेल ऑयल डाल दिया गया था। So she was lucky and she thought that only then she begin to believe that she was being taken to the place better than हर होम। तब उसे विश्वास हुआ कि अब मुझे बेचने उचने तो नहीं लेके जा रहे हैं, जरूर घर से कोई अच्छे जगह पर लेके जा रहे हैं, तभी तो इतना सजाया जा रहा है, इतने अच्छे तरीके से ले जा रहे हैं। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वे लोग पहुंचे तो ऑलरेडी पहले से बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे। And Ramlal handed over his daughter to the headmistress and left alone. और रामलाल ने हेडमिस्ट्रेस के हाथों में उसके हाथ को दिया, बोला कि लीजिए आप पकड़िए, आप समझिए कैसे पढ़ाना है, हाउ विल यू रिएक्ट। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज। अब वो बेचारी लड़की अपनी बुझी हुई आंखों से एकदम थकी हुई, डरी हुई, घबराई हुई चारों तरफ देख रही है। शी वॉज लुकिंग ऑल अराउंड ऑफ द क्लासरूम्स। सो एंड देयर वर सेवरल रूम्स। उसने देखा कि बहुत सारे रूम्स हैं वहाँ पे पड़े हुए, एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स। स्क्वाटेड मीन्स होता है फोल्डिंग, हाँ पलथी मार के, दैट इज फोल्डिंग योर नीज एंड बेंडिंग डाउन ऑन द मैट्स। तो रीडिंग फ्रॉम द बुक्स एंड राइटिंग द स्लेट्स। उसने देखा बहुत सारे बच्चे जो है वो बुक से पढ़ रहे थे, कोई स्लेट पे लिख रहा था। एंड
writing. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. अब headmistress ने कहा कि तुम भी जाकर के किसी क्लासरूम में बैठ जाओ कोने में. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. अब भोली को बिल्कुल ये नहीं पता था कि what is the meaning of a school and what happened, what is my job, what will be my job in the school. मैं स्कूल में करूँगी क्या काम है वहाँ पे, वो उसे बिल्कुल नहीं पता था. So but she thought that she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि स्कूल में कम से कम उसी के एज की काफ़ी सारी लड़कियां थी. and she hoped that one of these girls might become her friends. और उसे आशा थी कि शायद कोई इसी में से कोई एक लड़की होगी जो मेरी शायद दोस्त बन जाए. So the lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. लेकिन वो जो टीचर आई और क्लास के सारे बच्चों को कुछ बता रही थी, कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है. She looked at the picture on the wall, लेकिन वो दीवालों पे बने हुए जो पिक्चर बने थे वो सबको एक एक करके देख रही थी. क्या देखी? The color fascinated her. Color fascinated means attracted. Fascinated का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख लेना, attracted. ये attracted, उसको attracted होगा. तो attracted her, the horse was brown. When she saw there was a picture of a horse which was brown in color and like the horse. Now she started comparing this horse to the horse of Tehsildar had come to visit her village. जब वो तहसीलदार आए थे घोड़े पे बैठ करके, उसी घोड़े से वो कंपेयर किया. अच्छा ये हॉर्स है. सो ऐसा ही हॉर्स पे तहसीलदार भी आए थे जब उन्होंने क्या किया था, स्कूल को इनॉग्रेट किया था. The goat was black like the goat of their neighbors. और उन्होंने G for goat देखा तो गोट से कंपेयर किया कि हमारे पड़ोस में जो गोट रखे हुए हैं कि कोई किसी का बकरा है, उसे वो कंपेयर कर दिया कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ गोट. एंड द पैरट वाज एज सेम लाइक द ग्रीन एज द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. और उसने जब P for पैरट देखा फिर वो अंदाजा लगाई कि ये पैरट है. अच्छा ऐसा ही पैरट मैंने आम के बगीचे में देखा था. मैंगो ऑर्चर्ड मीन्स होता है क्या चीज? बगीचा, गार्डन. सो गार्डन नहीं बोल सकते उसको बोल सकते हैं एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ अ स्मॉल फॉरेस्ट वेयर द some typical kind of a plants are planted. So this is called orchard. And the cow was just like their Lakshmi. और जैसे ही C for cow देखा उसे लक्ष्मी याद आ गई कि हाँ ये हमारी लक्ष्मी की तरह ही है. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her and smiling at her. So she was simply watching all the pictures and recalling all the images what they had seen. She had seen. तो तब तक वहाँ पे एक टीचर, उनकी जो क्लास टीचर, स्कूल की टीचर थी, वो खड़ी होकर के उनकी तरफ मुस्कुरा रही है कि ये क्या सोच रही है. It seems like that she was telling something but she was not listening. She was only busy in watching all the pictures and comparing in her mind. So she asked, "What is your name, little one?" किसने पूछा? उस टीचर ने पूछा कि what is your name, little one? So she again stammered. She could not speak her name. She stammered bho like she wanted to say Lee that, but the Lee didn't come. She could stammer no further than that. उससे ज़्यादा stammer नहीं कर सकी. And then she began to cry and tears flowed from eyes in a helpless flood. तब इतना बोल करके जैसे मानो बाकी सारे बच्चे, वो किसी ने पूछा, इसी में तुमसे किसी ने पूछा कि अच्छा बताओ व्हाट इज योर नेम एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम द स्टमरिंग काइंड ऑफ टंग. स्टमर टंग अगर सफ़र कर रहे हैं तो यू सेड भो या समथिंग एल्स. यू कुड नॉट रिपीट, अपने नाम को फिर दोबारा रिपीट नहीं कर पाए. सारे लोग तब तक हंस दिए, किसी ने जोर से हंस दिया. तो ऑब्वियसली द टीयर्स रोल डाउन बिकॉज यू आर अनेबल टू स्पीक योर नेम. अपना नाम नहीं बोल पा रहे हैं तो सामने वाला जब हंस रहा है तो दोबारा कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे. ये ह्यूमिलिएशन आता है. तो सेम सी वो रो पड़ी, उसकी आंखों से आंसू निकले. एंड शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन द कॉर्नर एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. द गर्ल्स who she knew were still laughing at her. और वो बिल्कुल उसके बाद जो सर नीचे की, कभी पलट करके ऊपर नहीं देखी, उसे लगा कि सारी लड़कियां जो है मेरी तरफ देख के हंस रही हैं मुझ पे. When the school bell rang, लेकिन जब छुट्टी होती है, एकदम छुट्टी के टाइम तक ऐसे ही बैठा, all the girls screwed means होता है सब एक साथ came out, मतलब came out together.
came out together. Screwed out of the classroom, but Bholi dared not to leave. लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो कॉर्नर से निकले. Her head still lowered and she kept on sobbing. Sobbing is a synonym of crying. Weeping. ये वीपिंग और क्राइम का थोड़ा सुपरलेटिव फॉर्म एक तरह से देखा जाए. सुपरलेटिव नॉट इन द सेंस ऑफ कंपैरेटिव सुपरलेटिव वाली, जैसे रोते रोते जब लास्ट अटेम्प्ट आएगा तो क्या आ जाता है, शॉबिंग आया. शॉबिंग मतलब सुसकना. सो सी स्टार्टेड शॉबिंग. देन से भोली द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. तब टीचर ने बहुत प्यार से कहा, भोली इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. पूरे अपने लाइफ में आज तक भोली को इतने प्यार से किसी ने नाम पुकारा नहीं था. सो सी हर्ट, इट टच्ड हर हर्ट. ये इसके दिल को बहुत अच्छा लगा. एंड गेट अप सेड द टीचर. खड़ी हो जाओ. इट वाज नॉट ए कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. भोली गॉट अप, क्योंकि भोली को पहली बार इतने प्यार से किसी ने पुकारा था तो उसे लगा कि ये सचमुच ये जगह बहुत अच्छा है और ये कितने प्यार से मुझे पुकार रहे हैं. Now tell me your name. Now once again it was a request from the side of the teacher and teacher asked that what is your name. तुम्हारा नाम क्या है? Sweat broke out. जैसे फिर से पूछ दिया कि नाम क्या है. अब उसके पूरे पसीने से sweat broke out means क्या होता है? To precipitate हो जाना. क्या हो जाना? Precipitate हो जाना. अब पूरा का पूरा precipitation हो गया. पर्सिपेशन में पसीने से तरबतर हो गया. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. पूरे बॉडी में क्या हो गया, पसीने से लथपथ हो गई और डिप्रेस हो गई, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई. Would her stammering tongue again disgrace her? ऐसा लगा कि क्या फिर से उसका जो टंग है वो बोलने जाए फिर कहीं ली ना निकला, भो भो पे ही रह गए तो क्या होगा. तो फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. लेकिन उसने देखा ये औरत बहुत काइंड हार्टेड है, ये जरूर मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी, तो इसके लिए तो मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर. तो उसे समझ के कि ये मेरे पे हंसेगी तो कम से कम नहीं. सो शी अगेन टोल्ड बट भो 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 भो. शी बिगन टू स्टामर. फिर से वो स्टामर करती है लेकिन उसी समय कहते वेल डन वेल डन. द टीचर इनकरेज हर. इनकरेज कहा ठीक है आगे बोलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कम ऑन नाउ. And the full name, Bho, and finally she spoke, Bholi. So at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. ऐसा लगा कि मानो उसकी विक्ट्री हो गई, जीत हो गई, क्योंकि वो चाहती थी भो के आगे तो बोल नहीं पाती थी. And finally she spoke her name. It was a great achievement for her. Well done. The teacher patted her back. Patted means होता पीठ थपथपाना, encouragement करना. Her affectionately, बड़े प्यार से, lovingly and say put the fear out of your heart. चलो डर अपने हार्ट से निकाल दो, दिल से निकाल दो. and you will be able to speak like everyone else. अब तुम हर बाकी लोगों के तरह ही तुम भी बोल पाओगे. I am sure. Bholi looked up as if to ask. जैसे भोली ने उनकी तरफ देखा और कहा सचमुच क्या मैं और लोगों की तरफ बोल पाऊंगी. ये उनका एक कॉन्फिडेंस आ गया. यस it will be very easy. उन्होंने क्या कहा, yes it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? It was suggestion. It was a question that हाँ ये बहुत आसान है, तुम अगर रोज स्कूल आओगी तो क्या तुम रोज स्कूल आओगी. उसने Bholi nodded. Bholi didn't say anything at all but she nodded. Nodded means positively she accepted. So she accepted. No, say it loud. बोला नहीं ये सरल मत हिलाओ, say it loud. Yes बोलो. तो उसने कहा ये यस. एंड Bholi herself was astonished. Astonished means होता है सरप्राइज. Astonished means surprise. So she was also surprised that she had been able to say it. और उन्हें सरप्राइज हुआ कि मैं तो बोल पा रही हूँ. ये तो मेरा रुक जाता था, ये करके बाद कुछ नहीं बोलते थे, अभी यस बोल पा रही हूँ. So didn't I tell you now take this book? अरे मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, चलो ये बुक ले लो, तुम्हारा बुक है ये. The book was full of nice pictures and pictures were in color. ये बुक जो थी वो बहुत सुंदर बुक थी. उस बुक्स में सारे पिक्चर्स ही पिक्चर्स बने हुए थे. And dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow just like Lakshmi. वो सारी चीजों को देखती है और कहती है. And
with every picture was a word in a black letters. We should remember when we were in class nursery, LKG or 1, maybe the A for apple, B for ball, and the picture was drawn in that book also. And we were even fascinated to show that this is a apple, this is an apple, this is a ball, this is a cat, whatsoever. It was a fascinating. The same thing she fascinated. उन्हें भी बड़ा attractive होता है कि बड़े-बड़े black letters से लिखे हुए थे. And in 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book than a still bigger one. अभी 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें ये सारी चीजें सिखा दूंगी, फिर इससे भी बड़ी बुक मैं दूंगी तुम्हें. So it was a promise given by teacher. So that in time you will be able to learn more learned than anyone else in the village. बहुत ही कम समय में, इतने दिनों में तुम क्या सीख लोगी, और गांव में तुम्हारे लोग जितने पढ़े लिखे हैं उनसे ज्यादा तुम सीख लोगी. Then no one will ever be able to laugh at you. तब तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंस पाएगा. No one will laugh at you. People will listen to you with the respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. मैंने तुरंत से उसे बता दिया कि देखो अब बहुत जल्द तुम्हारा स्टैमरिंग खत्म हो जाएगा, तुम बहुत अच्छा बोलने लगोगी. एंड पीपल विल पे रिस्पेक्ट टू यू वेन एवर यू विल स्पीक. जब भी तुम बोलोगे वो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे. तो काफी अंदर से खुश तो हो जाती है. अब भोली को क्या लगता है, भोली फेल्ट एज इट सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेंपल वर रिंगिंग. उन्हें जैसे कानों के अंदर एक अजीब टाइप का एंथुसियाज्म रोज करता है. तो उसे लगता है कि गांव के सारे मंदिरों में घंटियां बजने लगी. वो काफी खुश हो गई, सारे प्लांट हिलने लगे, फ्लावर्स मुस्कुराने लगे, कि ऐसा लगा कि इट वाज अ ग्रेट सक्सेस. इट वाज अ ग्रेट सक्सेस इन हिज हार्ट, इन हर हार्ट, एंड इट वाज जस्ट ग्रोइंग अप. अब वो ग्रो कर रही है. सो हर हार्ट वाज थ्रॉम्बिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. अब उसे लगा कि नाउ शी इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म वेरी स्लोली बट शी वुड बी सक्सीडेड. उसे लगा कि अब मैं सक्सेस हो जाऊंगी. Now we can see here there's some questions like why do Boli's parents accept Vishambar marriage proposal? Now time has come to just show that this is a time to for the marriage of Boli. Obviously the Vishambar Nath was a grusher. He was an old kind of a man, you can say, as compared to his father's age. And despite knowing these things, he accepted the proposal of marriage. And why does the marriage not take place? But accept तो करती है लेकिन शादी हो नहीं पाती है. क्या कारण है वो देखते हैं. So thus the year passed. इस तरीके से बहुत साल गुजरते चले गए और the village became a small town. The little primary school became the high school, and there were now cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. अब गांव जो था धीरे धीरे छोटे शहर की तरह कन्वर्ट हो गया. वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी, गाड़ियाँ रुकने लगी, मेल एक्सप्रेस ट्रेन रुकने लगी. अब वहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी बन गया था. बेशक वो टीन के शेड में ही था. एक मिल भी वहाँ बन गया था. कॉटन गिनी मिल होता है जहाँ पे रुई धागे से सूत बनाई जाती है. एक सूता फैक्ट्री लग गया था. और अब स्कूल जो प्राइमरी स्कूल जो था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो चुका था. So one night after dinner, Ramlal said to his wife, अब ये बड़ी हो चुकी थी, इतने समय गुजर चुके थे, वो बड़ी हुई. एक बार रात को रामलाल अपनी वाइफ से बात करते हैं. क्या बात कर रहे हैं कि then I accept Vishambar's proposal. क्या मैं विशंबर नाथ के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं? मुझे करना चाहिए. Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली बहुत लकी होगी कि इतना अच्छा लड़का उन्हें मिल रहा है. ब्राइड ग्रूम इन द सेंस ऑफ द, जैसे दूल्हा बोलते हैं उसे. तो ब्राइड ग्रूम ऐसा लड़का मिल रहा है, वो बहुत लकी होगी. अब बिग शॉप उसके पास क्या नहीं है? उसके पास एक बड़ा सा दुकान है, एक घर है, वो भी खुद का है. आई हियर द सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. और मैंने ये भी सुना है कि उसके बैंक के अकाउंट में हजारों रुपये पड़े हुए हैं. वो बहुत अमीर भी है. Moreover, he is not asking for any dowry. और सबसे बड़ी बात है, he is not demanding any kind of a dowry. And और पता है दूसरा चीज, that's right, but he is not young, you know. लेकिन वो उसके फादर कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है लेकिन वो यंग नहीं है. And almost the same age I am. और वो मेरी उम्र का है. तो and he is also limbs. और दूसरा वो लिम्ब भी है, यानी उसके पाँव से लंगड़ा भी है.
So moreover, the children from his first wife are quite grown up. और एक बात है कि उसके पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो अब बहुत बड़े हो चुके हैं. Even they are adult. So what does it matter? उसने कहा कि तो क्या फर्क पड़ता है. किसने कहा? उसकी माँ ने कहा. So it 40 or 45 or 50, it is not a great age for a man. एक औरत होकर ये बात कह रही है कि 40, 45 और 50 इज नॉट ए ग्रेट, ये कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं हुआ है वो इंसानों के लिए, मर्दों के लिए. वी आर लकी, यस वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज. और तुम ये बात बोल रहे हो कि वो दूसरे गांव का है. ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड ही हैड नो एनी आइडिया अबाउट आवर डॉटर. हमारी बेटी के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है. इवन ही her village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अगर ये proposal हम लोग आज accept नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो पूरी उम्र उसकी शादी ही ना हो. Yes, but I wonder what भोली will say. लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा है, पता नहीं भोली को कैसा रिएक्ट करेगी, भोली उसे मानेगी या ना मानेगी. What will the witless one say? Witless means मंद बुद्धि, बेवकूफ, जिसके पास विदाउट इंटेलिजेंसी, तो मंद बुद्धि, फूल, डम, काउ, है ना. So maybe you are right, muttered रामलाल. उसे हाँ हो सकता है तुम जो बोल रही हो वो सही बोल रही हो. And in the other corner of the country yard, Bholi lay awake on her cot listening to her parents whispered conversation. और दूसरे साइड में कोर्ट यार्ड में, जैसे घर के बरामदे में दूसरे साइड में वो चारपाई पे लेटी हुई थी, खाट पे लेटी हुई थी और अपने फादर मदर की बातों को सुन रही थी, कन्वर्सेशन को सुन रही थी. सो बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. अब यहाँ फिर वापस आता है वही बात कि अब बिशंबरनाथ कैसा था. हु वॉज बिशंबरनाथ? बिशंबरनाथ वॉज अ बिजनेसमैन. ही वॉज अ ग्रोसर, वेल टू डू ग्रोसर. छोटी मोटी भी बिजनेस नहीं था, वो बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन था.